Today we are in Shastinagar. This is one of the, we can say, urban populated slum areas of Chandigarh. We are nearby Kishan's home, and the story of Kishan's home and Kishan's family is not less than an inspiration to thousands of homes in Shastinagar area. Kishan's father Samarjang and her mother Mala proudly associate themselves with Kachi Sadak. This was our first urban slums rainwater harvesting project. Now the name is quite long. We would say that why urban slums rainwater harvesting project. But the story behind this is pretty much interesting. Urban slums and rainwater harvesting are two very distinctive words. However, when we combine them, we come across a common ground. That is the problem of water. So as you can see in front of you, this whole project took around 2 to 3 months to complete, because that included the part where we had to do the ideation and design the whole concept. However, the implementation took only a couple of weeks. The focus and the prime objective was to come across and develop a solution which is low in cost, so that every family residing in these urban slums can afford it. The concept is very simple. You can see this PVC pipe over here. It acts as a gutter which collects all the rainwater which is falling on the roof of this house. Then there are low-cost filters which are placed within this PVC pipe, which act as the first level filter and filter out any sand and pebbles collected on the roof along with the rainwater. Eventually, rainwater comes down and falls into this 300-liter storage tank, where it is purified to a certain capability and can be used for daily household chores. For example, washing clothes, washing vehicles, cleaning of the house, and so on. And then, so the extra water which gets collected in this whole storage tank, it is pretty much normal that during monsoons it can reach beyond its capacity. So the water which family cannot use, and so that excess water gets drained out using this outlet pipe, and there is a separate pit which has been created for groundwater recharge purposes, and all the extra water goes to that groundwater recharge pit, and that helps the cause of recharging the groundwater nearby the house. So now we will meet the lovely, wonderful and inspiring family of Kishan, his father Samarjang and his mother माला देवी. Let's meet them in this lovely house. तो आज आपसे थोड़ी सी बातचीत करने आए हैं हम. आपका थोड़ा सा समय चाहिए होगा. पहले सर जब ये नहीं लगा हुआ था तब टैंकर आता था, पानी वाला वाटर टैंकर, तो उसमें सारे ये बस्ती वाले जितने हैं सब 2-2, 4-4 बाल्टी लेके जाते थे. तो लाइन में खड़े होके लाइन से पानी भरना होता था. जब लाइन से पानी भरते थे तो उसमें 2-3 घंटे का समय लग जाता था. 2-3 घंटे टाइम खराब होता था. उसके बाद में फिर पानी मिलता था, वो भी 2-4 बाल्टी. अच्छा, अब इसके लगने से मेरा टाइम बच गया है. जब बारिश होती है तो वो पानी सब इकट्ठा हो जाता है टैंक में. वो पानी हमारा नहाने के काम में, बर्तन धोने के काम में, कपड़े धोने के काम में इसलिए आता रहता है. तो हमारा टाइम बच रहा है. बच्चों को स्कूल छोड़ना है, वो टाइम बच जाता है, टाइम पे पहुंचा देते हैं. नहीं तो पहले लेट हो जाते थे हम. मैं देखो ऑटो ड्राइवर हूँ सर. ऑटो अपना है तो ऑटो सुबह जैसे निकल जाओ तो जल्दी काम हो जाता है, सवारियाँ भी मिलती हैं. और लेट निकलते हैं तो सवारी नहीं मिलती है इतना. इसलिए सुबह जब ये लग गया तो हमारा समय बच गया, तो हम जल्दी निकल जाते हैं घर से. तो नमस्ते दीदी. आप इस पूरे घर के कर्ता धर्ता हो. आप ही पूरे घर का ध्यान रखते हो. तो इस जगह पे पानी के कनेक्शन की सप्लाई ना होने के कारण और इतनी दूर आप लोगों को पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, आपके जीवन पे क्या असर पड़ता था पानी की समस्या का? सर पानी की बहुत दिक्कत होती थी, परेशान बहुत होते थे हम. लाइन में लगना पड़ता था, कभी रेडी पिलाना पड़ता था. पानी के लिए बहुत दिक्कत होती थी सर. 2-2 घंटा 4 बजे से उठ के भागना पड़ता था. कभी बच्चे भागते थे, कभी हम लोग भी जाते थे.
कभी हस्बैंड जाते थे, पानी की बहुत दिक्कत थी। कभी बीच में टंकर आता था, कभी आता ही नहीं था। 2-2 दिन का रखा हुआ पानी इस्तेमाल करना पड़ता था सर, इसलिए सर बहुत दिक्कत थी पानी की। तो जब ये पूरा प्रोजेक्ट लगा हाँ जी। तो खास करके आपके जीवन पे, बच्चों के जीवन पे, बच्चों के स्कूल जाने की चीजों पे, पूरा कुल मिला के आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा इस पूरे प्रोजेक्ट का? सर इससे बहुत फर्क पड़ा है कि जैसे पानी भी नहीं रहता तो हम ये पानी यूज कर लेते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं, बर्तन भी साफ होता है, पानी यूज कर लेते हैं, लेटरिन बाथरूम का भी मदद हो जाती है। तो इसलिए सर समय हमारा बच गया है, काफ़ी समय बचा है, इसलिए इतना भागना नहीं पड़ता है। एक टाइम ले आते हैं भर लेते हैं सुबह सुबह, इसलिए सर इससे बहुत फायदा है हमें। हाँ जी। तो आपको सिलाई भी बहुत अच्छी लगती है? हाँ जी, सिलाई भी करती हूँ, जब टाइम बच जाता है तो सिलाई कर लेती हूँ, बाकी घर का काम तो होता ही है बहुत सारा। तो आपको लगता है कि आप इस पूरे प्रोजेक्ट को या बाकी घरों को भी ये संदेश देना चाहेंगे कि वो पानी कैसे बचा सकते हैं अपने अपने घरों पे, बारिश का पानी उनको बताना पड़ेगा, इसलिए वो भी इस्तेमाल करें, तभी बचत होएगी। क्योंकि उनका भी समय बर्बाद होता है, लाइन में लगते हैं, कभी लड़ाई हो जाती है, कभी मिलता है, कभी मिलता भी नहीं है, तो इसलिए सर उनको भी बताना पड़ेगा। काफी लोग आते हैं, पूछ के जाते हैं, हम बोलते भी हैं, सर ने लगवाया है, बहुत मदद करी हमारी। ठीक है दीदी, धन्यवाद। थैंक यू सर।